Yes, students, our next topic in syllabus is digital data. Now, as I told you, what is data? Data is the raw facts which can be used for creating information. ठीक है, तो डिजिटल डेटा क्या हुआ? कोई बता सकता है व्हाट इज डिजिटल डेटा? हाँ जी बच्चे बता सकते हैं डिजिटल डेटा. Data in the form of soft copy. हाँ, data which is in the form of digitally means electronically. जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल योर स्प्रेडशीट्स, योर एक्सेल शीट्स, योर सम रिपोर्ट्स, जो डिजिटल डेटा हम एक फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं फॉर फेसिंग एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड विच इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली विद द इन्वेंट ऑफ इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट पे जितना भी डेटा पड़ा है वो सारा क्या है? डिजिटली है. इज इट क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, वहां पे. हाँ जी स्टूडेंट, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Today, data undoubtedly is an invaluable asset of an enterprise, big or small. ठीक है, data is very important for each and every organization. ठीक है, whether it is a small or whether it is a biggest organization, whether it is used in your CMM companies, hospitals, education sector, anywhere. Even though professionals work with data all the time, the understanding, management, and analysis of data from heterogeneous sources remains a serious challenge. What does this means? Means when we are each and every person, whether it is from any kind of profession, is analyzing data. हर प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो कोई मतलब पेशेंट है, मतलब एवरीवेयर डेटा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, हर जगह डेटा को एनालाइज किया जाता है, हर जगह डिजिटल डेटा आपका यूज होता है. इन दिस लेक्चर द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ डिजिटल डेटा. अब हमने क्या स्टडी करना है? डिफरेंट फॉर्मेट. वी हैव टू लर्न डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डिजिटल डेटा. दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड unstructured data, data storage mechanism, data access methods, management of data, the process of extracting desired information from data, challenges posed by various formats of data, etc. will be explained in this lecture. Data growth is then exponential, as I told you in previous lecture. So, what is digital data? In fact, the computer and internet both has imparted the digital form to data. हमारे पास क्या होते हैं? There are 3 types of formats available for digital data. Data या तो हमें अनस्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में मिलता है डेटा, या सेमी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, या स्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में. Usually, most of the time, data is available in the unstructured form. What is unstructured form? Can anybody tell me what is unstructured form? Unstructured का मतलब क्या है? Yes, students. इसका स्ट्रक्चर नहीं होता मैम. Means when data is not available in the correct format. Some data is available in the form of table, some is available in the form of spreadsheet, some is in the available of form of word document, some in notepad. मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल होता है. स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या होता है? जब हमारे पास डेटा जो एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट में
या पर्टिकुलर गूगल ड्राइव पे टेबल अवेलेबल है, शीट अवेलेबल है, आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स जनरेट कर, रिपोर्ट के लिए अलग फॉर्मेट है, टेबल के लिए स्ट्रक्चर वो होता है। सेमी स्ट्रक्चर, कुछ डेटा हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में होता है, कुछ डेटा टेबल की फॉर्म में होता है, दैट इज योर सेमी स्ट्रक्चर। Usually data is in the unstructured format which makes extracting information from it difficult. जब हमारे पास डेटा अनस्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होता है तो हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी बहुत डिफिकल्ट होती है। जहाँ पे आवाज नहीं आई प्लीज लेट मी नो। According to Merrill-Run, 80 to 90% of business data is either unstructured or semi-structured. ठीक है, when we are going to take any kind of business decision, ठीक है, which is your raw data that is in the form of unstructured और semi structured। जब हमारे पास रिजल्ट जनरेट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट जनरेट नहीं है, तो हमारे पास जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। Gartner also estimates that unstructured data constitute 80% of the whole enterprise। आपका जो 80% डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। ये देखो, दिस इज द फॉर्मेट्स ऑफ डेटा। दिस ब्लू shows you unstructured data, 10% is your semi structured and 10% is your semi structured data। Now we will study each and every type of data in detail with its characteristics, right? Let me define some points. What is unstructured data? This is the data which does not conform to a data model or is not in a form which can be used easily by a computer program। इसका मतलब ये है वो डेटा जो किसी फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो उस डेटा को हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि मेमोज, चैट रूम्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस, लेटर्स, रिसर्चर्स, वाइट पेपर्स, बॉडी ऑफ एन ईमेल, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं अवेलेबल होते। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। This data cannot be directly used by the computer. Nobody can directly। अब आपकी पर्टिकुलर ईमेल है, I can't fetch out the data from your mail until and unless you send me in the particular format। Next comes to semi-structured data। Semi-structured data when our data is partially unstructured and partially structured। For example, emails, जिसमें पार्शली स्ट्रक्चर्ड होता है डेटा और पार्शली अनस्ट्रक्चर्ड होता है। मैं फेच नहीं कर सकती, डेट इज अनस्ट्रक्चर्ड। आपकी ईमेल्स एक मतलब डे 1, डे 2, मतलब आज 1 अप्रैल की है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, इस फॉर्मेट में होती है, डेट इज योर सेमी स्ट्रक्चर। मार्कअप लैंग्वेज इज लाइक HTML। Metadata for this data is available but it's not sufficient। मतलब हमारे पास समराइज डेटा अवेलेबल होता है बट वो सफिशिएंट डेटा नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऑर्गेनाइज्ड, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होता है जिसमें हम स्टेजेस क्लियर होती है, प्रोसेस क्लियर होता है, एंड कैन बी यूज्ड बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। Relationships exist between entities of data such as classes and their object। Data stored in databases is example। जो आपका डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं डेटा, दैट इज योर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब सबसे पहले आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ जी बच्चे, समझ में आया कुछ या नहीं? हाँ जी अभिषेक, अभिषेक, यस मैम।
समझ में आया या नहीं? मैम एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। मैंने बताया आपको, हमारे पास 3 तरीके के डेटा अवेलेबल होते हैं। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है जो स्प्रेड हुआ होता है, इधर उधर बिखरा होता है। ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के फॉर्म में नहीं होता, जैसे कि रिपोर्ट्स की फॉर्म में नहीं होगा, आपके पास एक्सेल शीट की फॉर्मेट में नहीं होगा। अब जैसे ये सपोज करो चैट, आप चैटिंग करते हो, इसका कोई फॉर्मेट है? आप मेरे से चैटिंग कर रहे हो, दूसरा पर्सन किसी और से चैटिंग कर रहा है, तीसरा किसी और से। अगर मेरे को सारों की चैटिंग चाहिए, कोई फॉर्मेट अवेलेबल है? नहीं है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ, जिसमें हम कोई मीनिंग नहीं निकलता, डेटा विच हैज नो सिमेंटिक्स। ठीक है, जिसका कोई लॉजिकली नहीं है, मीनिंगफुल डेटा नहीं है। अगर मेरे को फेच करना है तो देयर इज नो यूज ऑफ डेटा। ठीक है, अब वीडियोस है, कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में तो नहीं है, मैं उसको रीड आउट तो नहीं कर सकती, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में तो नहीं है ना। अब मैं सारी पिक्चर्स एक एक्सेल शीट में लगा दूं, दैट इज योर स्ट्रक्चर डेटा। इसका एग्जांपल बताती हूँ। आपकी वो होती है ना ये स्पैम बुक जो बनती है लास्ट में फाइनल ईयर की, स्पैम बुक टाइप या आपकी कंबाइंड बुक। अब क्लास में 60 बच्चे हैं। स्टूडेंट होल्ड डाउन, मेरी एक बैटरी है, थोड़ा सा होल्ड डाउन, मैं चार्जिंग लगा दूँ, 1 मिनट। Yes, ma'am. 1 सेकेंड, चार्जिंग लगा। Yes, ma'am. अब आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो कुछ डेटा फॉर्मेट में नहीं होता, कुछ डेटा फॉर्मेट में होता है। अब जैसे आपकी ईमेल है, ईमेल में एक तो सीक्वेंस फॉलो हो रही है ना, कि 2 अप्रैल को आपको ये मेल आई है, 4 को ये आई है, मतलब जैसे जैसे मेल आती जाती है वैसे वैसे आपकी सीक्वेंस बनती जाती है। बट मेरे को आपकी ईमेल से डेटा फैच करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या आता है? सेमी स्ट्रक्चर। कुछ डेटा फॉर्मेट में है, कुछ डेटा फॉर्मेट में नहीं है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो आपके डेटाबेस में स्टोर होता है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? टेबल्स की फॉर्म में। टेबल में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। अभी भी क्लियर नहीं है तो बताओ। क्लियर है? अभिषेक, अभिषेक, हाँ जी, लक्ष्मी, अभिषेक, ज्योति, निशा, यस यस मैम। मैम। यस मैम। समझ आया या नहीं? यस मैम आ गया। अब आता है नेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, इसमें इतना गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। द इंफॉर्मेशन, अब कोई स्टक हो जाता है या कुछ है, इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। इट डज नॉट फॉलो एनी रूल्स और सिमेंटिक्स। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ द डेटा। दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स यू हैव टू कीप रिमेंबर। किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है डेटा, हम जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। These are the characteristics of unstructured data. First is, it does not follow any kind of data model. ये कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। Cannot be stored in the form of rows and columns as in a database. इस डेटा को हम टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। Not in any particular format or sequence. Not easily usable by a program. ये कोई प्रोग्राम की, it cannot be used by any kind of program. It does not follow any kind of rules. It is very difficult to predict the data or analyze the data. अब आता है नेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता कहां से है? वेब पेजेस, जैसे कि आपकी एडवर्टाइजमेंट्स है,
मेमोज क्या होते हैं बच्चे? मेमोज क्या होते हैं? व्हाट आर मेमोज? लक्ष्मी, ज्योति, निशा, अभिषेक, हाँ जी बच्चे, कहाँ पर हो? Yes, students, are you there? Yes, ma'am. हाँ जी, मेमोज क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर मैम मेमोज? मेमोज में मेमोज क्या होते हैं? मैम पैम्पलेट में जैसे डेटा डिस्क्राइब किया जाता है उस तरीके से होता है मैम मेमोज में। Yes, absolutely correct. Data available in the form of pamphlet. Absolutely correct. Okay. Then it comes from videos, images, body of an email, Word document, PowerPoint presentation, chats, reports, white papers. कहीं से भी, these are the different sources available for unstructured data. Where does unstructured data come from? Broadly speaking, anything in a non-database form is called a unstructured data. जो database की form में नहीं होता, that is your unstructured data. It can be classified into two broad categories: bitmap of objects, textual objects. Bitmap object is an example image, video, audio files, and textual your Word document. Refer to any figures and all. अब जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, that is all your unstructured data. अब आता है हाउ टू मैनेज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. हमने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में तो पढ़ लिया, अब इसको मैनेज कैसे करना है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग इन सो मैनी अनफॉर्मेटेड वे. तो हमारे पास बहुत सारे अनफॉर्मेटेड वे में पड़ा होता है, डिफरेंट सोर्सेज में पड़ा होता है, तो कैसे मैनेज कर सकते हैं. उसके लिए हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट यूज करते हैं ताकि हमारा डेटा फास्टर एक्सेस हो सके. फर्स्ट इज योर इंडेक्सिंग. सबने डेटाबेस पढ़ा हुआ, डीबीएमएस पढ़ा है ना? हाँ जी, सबने Yes, डीबीएमएस पढ़ा हुआ है. Yes, ma'am. इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग क्या होता है? मैम डेटा को अरेंज कर इंडेक्स देना क्या होता है? What do you न्यूमेरिकली या mean by अल्फाबेटिकली. index? मैम डेटा को अरेंज कर दे न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली बेसिकली इनके यूज से. Absolutely, absolutely correct. ठीक है. नेक्स्ट इज योर टैग्स एंड मेटाडेटा. When we are using some references, classification and taxonomy, when we are dividing some parenthood data into childhood data, distribution of data. Next comes to how to store unstructured data. These are the challenges we are facing for storing unstructured data. First is your storage space. First is your storage space. In storage space, there is volume of unstructured data and its unprecedented growth makes it difficult to store. For example, audios, videos, images, etc. Huge amount. अब ये देखो, सबसे पहले आता है आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हम कैसे स्टोर कर सकते हैं. बहुत डिफिकल्ट होता है. अब जैसे वीडियोज है,
आप एक वीडियो स्टोर कर लोगे, 2 कर लोगे, 10 कर लोगे. Videos occupy lot of space for storing the data. Next is your scalability. Scalability is another issue. What do you mean by scalability? What do you mean by scalability? There is no a particular format for storing unstructured data. Third challenge is your retrieve information. It is very difficult for fetching the information in unstructured data. Obviously, security is a big issue. When your data is scattered here and there, it is very difficult to maintain and security. Anybody can access the data. Update and delete. It is very difficult to update that data. We have to, it is very difficult to perform operations on unstructured data. Indexing and searching. It is very difficult to fetch or search a particular entity or item from unstructured data. अब what are the problem solution? हमें challenges तो पता लग गए. अब उनका solution क्या available है हमारे पास? उनके फॉर्मेट चेंज किए जाए. हम कह देते हैं ना JPEG को आप JPG फॉर्मेट में कर दो, वर्ड को नोटपैड में. देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल ताकि हमारी कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई हो. नेक्स्ट इज न्यू हार्डवेयर. क्रिएट हार्डवेयर विच सपोर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, आइदर कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग स्टोरेज डिवाइसेस और बी एन स्टैंड अलोन. ये हमें इस तरह का हार्डवेयर यूज करना चाहिए, या तो लैपटॉप के अंदर की हार्ड डिस्क यूज कर लो या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर लो फॉर सेविंग दैट डेटा. RDBMS आपको बता दिया. XML, store in XML which tries to give some structure, जो हमारे एलिमेंट टैग को कुछ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं. आपने लास्ट टाइम पढ़ा था वेब डिजाइनिंग इज द मेन एग्जांपल ऑफ दिस सॉल्यूशन. CAS, organize 5 based on the metadata. नेक्स्ट आता है हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अब आता है हमें इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से. फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन. Unstructured data is not easily interpreted by conventional search algorithm. There is no particular algorithm available for unstructured data. Tags. As the data grows, it is impossible to put tags manually. Third is indexing. It is very difficult for indexing the complete unstructured data. Deriving meaning. It is very difficult to derive meaning of every document. File formats. Increasing number of file formats make it difficult to interpret data. Last is your classification and taxonomy. It is very difficult to classify or organize data, division of data. These are the problem solutions available for tags, text mining, application platforms. These are the different solutions available for your unstructured data. Next comes to UIMA, means Unstructured Information Management Architecture. Is an open source platform from IBM which integrates different kinds of analysis engines to provide a complete solution for edge discovery from unstructured data. अब आता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो पड़ा है, उसको मैनेजमेंट कैसे एक आर्किटेक्चर में इंजेस्ट करती है. मींस
सारे डॉक्यूमेंट्स को या तो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स में सेपरेट पैराग्राफ्स में डिवाइड किया जाए, उनकी ग्रुपिंग की जाए. दीज ऑल द फॉर्म्स ऑफ मैनेजिंग द डेटा. Yes, student, do this exercise. Student, do this exercise. Search, think, and write about the true practices for managing the growth of unstructured data. Hurry up, do it. Before proceeding ahead, do it. This exercise, hurry up. Hanji, students. Are you getting my point? Jyoti, Nisha, Lakshmi, Abhishek. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I ma'am. give you 5 minutes. I'll give you 5 minutes. Do this exercise and let me know what you have done. ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. कर रहे हो? Are you doing or not? Yes, students, are you doing or not? हाँ जी, किसी ने किया? तभी अटेंडेंस मिलेगी, अदरवाइज मैं कर रहा हूँ. कोई एक बताइएगा. हाँ जी, किसने किया? सत्यम सिंह, लक्ष्मी, मैम कर रहे निशा. हैं कर रहे हैं हाँ बेटा, सत्यम किया जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है. मैम कर रहे हैं
किसी ने किया? Is there anyone who did it this question? रश्मि बेटा, शुभम पाल, उत्पल आनंद. Is there anyone who did this? कोई है जिसने किया अभी तक? Please complete this question before coming to next lecture.